Alright, so till now we have seen questions which were of numerical in nature, right? So there were some numbers in the series and we had to find the next term. From now onwards, we have some questions in which the questions are having alphabets, right? So we call them alphabetical series. The logic is the same. Find the pattern and find the answer. That's it, right? So there is nothing different. That is why I have put them in the same chapter, that is series and sequence, right? If you think about it, alphabet is also a series, right? A, B, C, D, E, that's also a series. So nothing is different. We will apply the same method by which we have been solving these questions, and we will solve these questions as well, right? Chaliye, so question 21. Which letter is 7th from left of 16th from right in English alphabet? Right? So first I would like you to try to solve this question and then we'll solve it together. So I'm going to give you about 2 minutes. This is an easy one. I'm going to give you about 2 minutes to solve this one. So pause the video for 2 minutes. Try to solve it on your own and resume only after you are done. Alright, so I hope you have tried and solved it, right? It's an easy one, nothing is difficult, but let's understand it together. क्या दिया हुआ है? Which letter is 7th from left of 16th from right in English alphabet? Right? Which letter is 7th from left of 16th from right in English alphabet? तो सबसे पहले तो आपको 16th from right ढूंढना पड़ेगा ना, right? So think of it like this, that let's say we have these A, B, C, D, E, ऐसे करते 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 we have this X, Y and Z. Okay, X, Y and Z. Now, if you think of them as alphabets or letters, they are A, B, C, D, E, X, Y, Z, till X, Y, Z. You can also think of them in numbers. Let's say this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, 5, and ऐसा करते 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 we know that this is 26. To 24, 25 and 26. You can think of them as numbers as well, right? Okay. सबसे पहले we have to identify 16th from right. 16th from right. Okay. So 16th from right मतलब यहाँ से 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते. 16th from right मतलब यहाँ से 1, 2, 3, 4. So 16 कहीं बीच में आएगा यहाँ पर. Okay. Let's say 16th letter is here. इसका मतलब है कि यहाँ पर 15 लेटर्स हैं इसके राइट साइड. ये खुद एक लेटर है, सो ये 16 हुए टोटल. इसका मतलब यहाँ पर 10 लेटर होने चाहिए. सो कैन आई से दैट दिस 16th लेटर फ्रॉम राइट इज एक्चुअली 11th लेटर फ्रॉम लेफ्ट. कैन वी से दैट? है ना? सो थिंक ऑफ इट. 16th लेटर फ्रॉम राइट is same as 11th letter from left. Correct? So 11th letter कौन सा होता है from left? 11th letter. So भी हमें याद है H और T. J is 10. So J K. This is K. 16th from right. This is K. है ना? सो अब हमें आइडेंटिफाई हो गया है कि कौन से लेटर की लेफ्ट में जाना है. ओके. विच लेटर इज 7th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ के? 7th फ्रॉम लेफ्ट ऑफ के. 7th. सो के लेफ्ट जाना है और 7th जो भी आएगा वो अपना आंसर होगा. 7th का मतलब क्या है? सो के 11th है ना, के 11th है तो 7th मतलब ये 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. उसमें 7th कौन सा होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7th लेटर मतलब 4 लेटर मतलब D. D is the answer. ऑप्शन A. राइट? बहुत सिंपल तरीके से किया. हमने क्या किया? के आइडेंटिफाई हो गया है. देखिए के आइडेंटिफाई हो गया. ओके. अगर के आइडेंटिफाई हो गया है तो बस आपको कुछ नहीं करना है, के लिख दीजिए यहाँ पर. राइट? एंड वी नो दैट के इज 11th लेटर. नाउ वी हैव टू फाइंड 7th फ्रॉम लेफ्ट. 7th फ्रॉम लेफ्ट. सो 11 के पहले 10 होगा, 10 के पहले 9, उसके पहले 8, उसके पहले 7, उसके पहले 6,
उसके पहले 5, उसके पहले 4, 3, 2, 1. तो सेवेंथ मतलब कौन सा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th. ये है सेवेंथ लेटर फ्रॉम लेफ्ट ऑफ के. एंड फोर्थ मतलब हम जानते हैं एबीसीडी में 4 मतलब कौन सा होता है? 4 रिप्रेजेंट्स डी एंड हेंस डी इज द आंसर. कोई डिफरेंस नहीं है, बस लॉजिक आपको अप्लाई करना है, दैट्स इट. अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस आर द इजीएस्ट क्वेश्चंस. बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आसान से आसान क्वेश्चन यहां से निकल के आते हैं. Why? Because you already are familiar with everything. आप अल्फाबेट जानते हो, आप उनकी नंबरिंग जानते हो. They can only and only confuse you. बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है. आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज के टुकड़े टुकड़े कर देने हैं. जैसे 16th फ्रॉम राइट, पहले ये आइडेंटिफाई कर लो, फिर उसके 7th लेफ्ट में जाओ. दैट्स इट. अगर एक साथ सब कुछ पढ़ोगे ना, इफ यू रीड एवरीथिंग वंस, यू विल गेट कंफ्यूज्ड फॉर श्योर. बट इफ यू नो हाउ टू पार्टीशन, यू नो हाउ टू पुट सम पार्टीशन इन द क्वेश्चंस, यू आर डन. आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है ना. So that was question 21. It was a good question. Let's move to question 22. If the second half of an English alphabet is written in reverse order, which letter will be the fifth at left from 21st letter from left? Again, टुकड़े टुकड़े में क्वेश्चन कीजिएगा. I am going to give you 3 minutes for this one because I want you to get comfortable with this. So take 3 minutes, try to solve it on your own, resume when you are done. 3 मिनट है आपके पास. You guys have 3 minutes and that is more than enough. Even if अगर आपको कंफर्ट के लिए फिलहाल ABCD लिखनी पड़े तो भी I have no issues, I have no problems. Okay, so try to solve it in 3 minutes. All right, so I hope by now you have tried it and I hope that you have been able to solve it. चलो इसको एक साथ समझते हैं. क्या दिया हुआ है? If the second half of an English alphabet is written in reverse order, इसका मतलब ये है कि first half will be like this: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 5 है, okay, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, correct? And next कौन आना चाहिए? वैसे next आना चाहिए 14, but अब उल्टा लिखा है उन लोगों ने, right? So अगर मैं यहां से वापस शुरू करूं, so it will be 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. ओके, सीरीज ऐसे पढ़ना है, पहले यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक. दिस इज हाउ दे हैव रिटन द अल्फाबेट्स. ठीक है, चलो ये हमने लिख दिया. फिर क्या बोला है उन्होंने? Which letter will be the fifth at left from 21st letter from left? Left से इस तरफ से 21st letter कौन हुआ? ये तो हो गए 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. ये है 21st letter. 21st from left. 21st from left. Now, which letter will be the fifth letter at left from 21st letter from left? इसकी लेफ्ट में जाना है, मतलब इस तरफ, और फिफ्थ लेटर 1, 2, 3, 4, 5. दिस इज द आंसर. 24th मतलब कौन सा लेटर होता है हमारे अल्फा न्यूमेरिक कोड में? 1 is A, 2 is B, तो 24 is X. Hence the answer is option B, X. This is X. आंसर. आपने देखा होगा पूरे क्वेश्चन में मैं लेटर्स में डील नहीं कर रहा हूं. आई एम डीलिंग इन नंबर्स. व्हाई? बिकॉज इट मेक्स थिंग्स इजियर फॉर मी. इट मेक्स थिंग्स इजियर फॉर मी, है ना. नंबर से मैं तुरंत लेटर को आइडेंटिफाई कर सकता हूं. सो ऐसे क्वेश्चन में रादर देन फोकसिंग ऑन अल्फाबेट्स, फोकस ऑन नंबर्स. यू ऑलरेडी नो 1 is A, 2 is B, 3 is C, 4 is D, 26 is Z. You already know that. So ऐसे क्वेश्चंस में अल्फाबेट्स में मत फोकस करो, नंबर पे फोकस करो. इट विल मेक योर जॉब अ हेल लॉट ऑफ इजियर, राइट? So that was a good question, question 22. लैंग्वेज देखिए, लैंग्वेज विल ऑलवेज बी कंफ्यूजिंग.
ये लैंग्वेज हमेशा कंफ्यूज करेगी आपको बिकॉज इट्स देयर जॉब. But please understand, why do they have to make the language difficult? Because the question itself is not difficult. The question is easy. But उनको language को difficult बनाना पड़ेगा, तब जाकर question कुछ difficult लगेगा. And you do want such questions. Why? Because अगर आपको concept आता है, तो आप चाहोगे कि कम से कम लोगों को ये concept आए, है ना? Because it is a competition. आपको percentile मिलने वाला है, marks नहीं मिलने वाले. You are about to get percentile. So you want to beat people to this, right? So जितने कम लोग इसको आसान मानकर आगे बढ़ेंगे वो आपके लिए अच्छा है. Okay, so that was question 22. Let's move to question 23. If the letters of an English alphabet are written in the reverse order, which will be the 4th letter at right from the 13th letter from left? So once again, similar question है. I'm going to give you again 3 minutes because I want you to develop comfort. So take 3 minutes. Try to solve the question on your own and resume when you are done. Alright, so I hope by now you have been able to solve this one. चलिए इसको try करते हैं. If the letters of an English alphabet are written in the reverse order. Reverse order का मतलब क्या होता है? So reverse order होगा कि भाई A is 26, then B is 25, C is 24, D is 23, ऐसे करते 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 लास्ट में 3, 2, 1. This is the reverse order, right? Okay. अब क्या पूछा हम लोगों ने? Which will be the 4th letter at right from the 13th letter from left? 13th letter from left कौन सा आएगा? पहले हमें ये देखना है. Okay. So देखिए, first letter from left is 26th letter. Second letter from left is 25th letter. 25th मतलब अपना इजोटी वाला. लेफ्ट से फर्स्ट स्टार्ट करते तो हमें क्या मिलता है यहाँ पर 26, बिकॉज यहाँ पर हमने Z लिखा हुआ है ना, अल्फाबेट रिवर्स ऑर्डर में लिखे हुए हैं. सो हमारा A उस तरफ है, ये Z है, Z Y X और यहाँ पर है C B A, ऐसा लिखा हुआ है रिवर्स ऑर्डर में. ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द फैक्ट, फर्स्ट लेटर है 26, सेकेंड लेटर है 25, थर्ड लेटर है 24. क्या आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है? इनका सम हमेशा 27 होगा. द सम विल ऑलवेज बी 27. सो अगर नीचे 13th लेटर है तो ऊपर क्या होगा? 14th लेटर. अगर नीचे 13th लेटर 13 तो ऊपर होगा 14. 14th लेटर कौन सा होता है? M N O. 14th लेटर इज N. सो दिस इज N. ये N है 14th लेटर. दिस इज N, है ना? अब वो क्या पूछ रहे हैं? The 4th letter at right from the 13th letter. Fourth letter from right. So N यहाँ पर है जिसका रैंक 14 है. आगे हमें रिवर्स ऑर्डर में जाना है तो इधर 13, 12, 11 and 10. तो राइट तरफ फोर्थ कौन हुआ? 1, 2, 3, 4. 10th लेटर 4 है, 10 मतलब अपना J, इसका मतलब आंसर आएगा A. ऑप्शन है. ओके, कंफ्यूज नहीं होना है. ऑप्शन ए. आप नंबर में ही डील कीजिए, नंबर में ही डील करोगे तो सबसे आसान होगा, बिकॉज अदरवाइज यू विल गेट सो मच कंफ्यूज्ड. एंड नंबर्स फिक्स है, वी विल ऑलवेज फॉलो इजोटी. ऑलवेज फॉलो इजोटी. नंबर्स हमेशा इजोटी वाले ही होंगे. A1, B2, C3 वैसा करते हुए, राइट? आई एम श्योर कुछ लोगों को अभी शायद थोड़ा कंफर्ट डेवलप हुआ होगा, राइट? सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो टू द क्वेश्चन दैट वी सॉल्व बिफोर. आप अपने वीडियो को वहां से रिवाइंड कीजिए एंड देन वंस अगेन ट्राई टू कोप विथ व्हाट वी आर डूइंग, राइट? हम क्या कर रहे हैं? वी आर जस्ट कन्वर्टिंग अल्फाबेट्स इनटू नंबर्स एंड देन वी आर सॉल्विंग. यही कर रहे हैं. देयर इज नो अदर एक्सप्लेनेशन. कन्वर्ट योर अल्फाबेट्स इनटू नंबर्स. फॉर एग्जांपल, इन्होंने क्या बोला था? Letters of an English alphabet are written in reverse order. तो मैंने ऐसा नहीं लिखा Z, Y, X ऐसे करते करते. मैंने सिर्फ क्या लिखा कि Z, मेरी भाषा में Z का नंबर 26 है तो मैं इधर 26 लिख दूंगा, फिर 25, फिर 24 ऐसा करते करते. सो मैंने नंबर में ही डील किया है, दैट्स इट. और नंबर में डील करते तो ऐसा पैटर्न हमें दिखा था कि भाई फर्स्ट लेटर जो है लेफ्ट साइड से वो है 26th लेटर हमारा. सेकेंड मेंबर 25th लेटर है. थर्ड टर्म
24th लेटर है, तो मैंने देखा सम हर जगह 27 ही आ रहा है, दैट इज फिक्स। तो वो यूज करके हमने क्या पता किया कि 13th टर्म इस सीरीज का होगा 14th लेटर जो होता है इंग्लिश में n। इसका मतलब हमें n के बारे में बात करनी है। और फिर क्या बोला था, n की राइट साइड 4th कौन आता है, तो भैया राइट साइड जाना है, उन्होंने बोला था रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं, तो राइट साइड मतलब 13, 12, 11, 10, ये 10 होगा अपना आंसर, है ना। सिंपल है, बस एक बार आपको लॉजिक दिमाग में बैठना चाहिए कि वी आर डीलिंग विथ नंबर्स नॉट अल्फाबेट्स, है ना। So that was question 23. Let's move on. Question 24. Which word is at last after arranging the following according to dictionary? Very interesting question. ऐसा question पहली बार आया है, correct? So पहले मैं आपको try करने देता हूँ. Let's take 2 minutes. Let's take 2 minutes to solve this one. It's a very easy question if you understand what is dictionary order, correct? And I'm sure most of you will be able to understand what's a dictionary order. So I'm going to give you 2 minutes for this one. Try to solve it on your own and resume after you are done. All right, so सबसे पहले let's understand dictionary order क्या होता है. So dictionary order is simply this order, alphabetical order, right? Alphabetical order. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एप्पल एंड बनाना, इन दोनों में पहले कौन ऑर्डर होगा, पहले कौन आएगा डिक्शनरी में, ऑब्वियसली पहले एप्पल आएगा, बाद में बनाना आएगा। आप बोलोगे सर ये तो कितना आसान है, ठीक है कोई बात नहीं। लेट्स से एक वर्ड है एप्पल और दूसरा वर्ड है लेट्स से अमीगो, इनमें से कौन पहले आएगा, तो आप देखोगे कि अच्छा दोनों में पहला लेटर तो ए ही है, इसका मतलब पहला लेटर यूज करके हुए हम उसको ऑर्डर नहीं कर सकते, वी विल हैव टू यूज द सेकंड लेटर जो अलग है। सेकंड लेटर इसमें पी है, उसमें एम है, पहले क्या आता है एम और पी में, पहले एम आता है, सो भैया इसका रैंक पहला आएगा और इसका रैंक दूसरा आएगा। अमीगो पहले आएगा बाद में एप्पल आएगा, अमीगो पहले आएगा बाद में एप्पल आएगा। Is that clear, right? So dictionary order का मतलब होता है कि आप जहां differentiate करो वो लेटर निकालो आप. Okay, now let's come to this question. Which word is at last after arranging the following according to dictionary? So we've got satin, we've got satire, we've got Saturn, and then we've got satiate. Satiate का मतलब होता है satisfied. Okay. सबसे पहले आप देखेंगे कि भाई सैट तो सब में कॉमन है, सैट सब में कॉमन है, सैट सब, इसका मतलब सैट के बाद कौन सा लेटर आ रहा है यहाँ पर, सैट के बाद तो यहाँ पर है आई एन, यहाँ पर है आई आर ई, यहां पर है यू आर एन और यहां पर है आई ए टी ई, आई ए टी ई। ओके, सैट तो कॉमन है, सैट से हम कभी पता नहीं कर पाएंगे कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। नाउ लुक एट दीज वर्ड्स, दीज लेटर्स, यहां से हम शायद थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाएंगे, जैसे कि आई यू एंड आई एंड यू में पहले कौन आता है, अल्फाबेट्स में आई आता है, इसका मतलब ऑब्वियसली ये जो है सबसे लास्ट आया है, आई पहले आएंगे, ये सबसे लास्ट होगा, तो हमारा लास्ट वाला वर्ड यही होगा, क्योंकि आई और यू की रेस में आई पहले आता है, यू बाद में आता है। सो सैटिन, सटायर एंड सैटिएट होंगे 1 2 3 इन एनी ऑर्डर, बट पक्की बात यह है कि भाई ये बंदा 4th होगा, सो सैटर्न लास्ट आएगा, विच इज द आंसर, है ना। क्लियर सी बात है, अच्छी बात है कि उन्होंने लास्ट बोला था, अच्छी बात है कि उन्होंने लास्ट बोला था। चलिए अब मैं इस चैलेंज को एक लेवल बढ़ा देता हूं, व्हाट इफ उन्होंने पूछा होता कि भाई फर्स्ट कौन होगा,
फर्स्ट कौन होगा ये पूछा है। चलिए सैटर्न तो रेस में फोर्थ आ गया है तो हम उसको फोर्थ लिख देते हैं, सैटर्न फोर्थ है। तो सैटर्न के बारे में अब हमें नहीं सोचना है। बचे हैं ये लोग, आई भी कॉमन है, आई भी कॉमन है, आई से हम नहीं उनको जितवा पाएंगे, आई भी कॉमन है। अब क्या आया, नेक्स्ट है एन, नेक्स्ट रेस एन के बीच में है, आर के बीच में है और ए के बीच में है। एन आर और ए में पहले कौन आता है, एन आर और ए में पहले कौन आता है, पहले आता है ए, तो ये होगा रैंक नंबर 1। आर और एन में अब कौन आता है उसके बाद, सो एन और आर में एन पहले आता है तो ये होगा 2 और ये होगा 3। सो ये हमें रैंक मिल गया। पहला नंबर किसका आया, सैटिएट, सैटिएट भी नंबर 1 है। दूसरा नंबर किसका आया, सैटिन, ये भी नंबर 2 है। और तीसरा नंबर किसका आया, सैटायर, ये है 3rd। सो अगर हमें सारे ही ऑर्डर पूछे होते तो हमें ऐसा करना पड़ता। इसका मतलब है फर्स्ट पूछा हो, लास्ट पूछा हो, सेकंड पूछा हो, थर्ड पूछा हो, फर्क नहीं पड़ता है, लॉजिक सेम ही रहेगा, पहले क्या आता है, दैट्स इट। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है ना, FCFS जो बोलते हैं हम उसको, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे इसको सॉल्व करना है। ओके, दैट वाज क्वेश्चन 24, डिक्शनरी ऑर्डर का क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेट अस मूव टू क्वेश्चन 25। Arrange the following in the order of the dictionary: scenery, science, scandal, school, scatter. देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई एम गोइंग टू गिव यू अबाउट 3 minutes फॉर दिस वन, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन आप पहली बार करोगे। 3 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, विच इज मोर देन इनफ। ऐसे क्वेश्चन के लिए 3 मिनट इज मोर देन इनफ, और ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ने हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, you cannot afford leaving such questions, they are the easiest question. Why? Because सारे लॉजिक आपको मालूम है कैसे सॉल्व करना है। दिस इज डिक्शनरी ऑर्डर, जो कोई भी छोटा बच्चा भी सॉल्व कर सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूरा कंट्री सॉल्व करेगा, लेकिन आप नहीं करोगे तो आप यू विल रिग्रेट इट लाइक एनीथिंग, है ना। सो यू कैन नॉट अफोर्ड लीविंग सच क्वेश्चंस। ओके, सो टेक 3 minutes, try to solve it on your own and resume when you are done. All right, so I hope by now you have solved it. चलिए इसको ट्राई करते हैं। So we've got 5 words, right? 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. You will be able to see that SC सब में कॉमन है, SC, तो मैं लिखूंगा ही नहीं SC, सारे स्पेलिंग में SC कॉमन है। तो मैं काम करता हूं, नेक्स्ट 2-3 लिख देता हूं कि भाई लेटर्स कौन से हैं। यहां पर है E, N, यहां पर है IE, सो यहां पर है EN, EN, यहां पर IE, यहां पर AN, यहां पर HO और यहां पर AT। ओके, नेक्स्ट लेटर सब में अलग है, सिर्फ 2 में सेम है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां रेस यहां लगानी है आपको, इनके बीच में रेस लगानी है। EIAHA, उसमें सबसे पहले कौन आएगा, ऑब्वियसली ए वाले पहले आएंगे, है ना, ए वाले पहले आएंगे, 3 and 5। ओके, ए के बाद इधर N है और इधर T है, उसमें कौन पहले आता है, पहले आता है N। सो भैया नंबर 1 होना चाहिए ये फर्स्ट। थर्ड होना चाहिए फर्स्ट। इसका मतलब सी और डी आंसर नहीं हो सकते, ये पता चल गया हमें, सी और डी आंसर नहीं हो सकते। ओके, सेकंड होगा 5th। ओके, तो ये दोनों हो गए। अब बात करते हैं 1, 2 and 4 की। चलो E, I and H, उसमें पहले सबसे पहले कौन आता है, A B C D E आता है सबसे पहले। तो थर्ड होगा अपना फर्स्ट वाला वर्ड, सीनरी। इसका मतलब 3, 5 and 1, 3, 5, 1 इधर नहीं है, A is the answer। प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन। 3, 5, 1, 4, 2 है ना। वेरीफाई कर लीजिए एक बार, देख लीजिए, पॉज द वीडियो, जस्ट ट्राई टू सी व्हाट आई हैव डन। रफ वर्क कैसे करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप कैसे रफ वर्क करते हो इसमें, दैट्स आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिकॉज देखो आप SC कॉमन था तो मैंने लिखा ही नहीं। अगर कॉमन है, अगर मेरे आंसर में वो कोई रोल प्ले नहीं करने वाला है तो व्हाई शुड आई बॉदर, राइट। वो इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो व्हाई शुड आई बॉदर।
राइट? So that was question 25, again dictionary order, काफी interesting question. ऐसे question को once again I repeat, you cannot leave such questions. Hunt these questions. किसी भी aptitude paper में your job is to find or rather hunt the easy questions, the easier questions, the easiest of the questions. Okay, and this falls under the category of easiest question, no doubt about it. Easiest question है ये सारे, इनको कभी छोड़ना नहीं है. आगे बढ़ते हैं. Question 26, once again similar concept. Arrange the following words according to the dictionary: critical, criterion, crisis and crisp. So once again I give you about 2 minutes now, but I want you to be to be able to do the rough work like I had done, right? So take 2 minutes, try to solve it on your own and resume after you are done. Alright, so I hope by now you are done. Let us understand. We've got critical, criterion, crisis and crisp. So CRI हर जगह कॉमन है, तो मैं CRI नहीं लिखूंगा. 1 2 3 4. चलो यहाँ पर क्या है? TI, T है फिर I है. यहाँ पर क्या है? TE, T है फिर E है. यहाँ पर क्या है? SI और यहाँ पर क्या है? SP. चलिए सबसे पहली रेस यहाँ लगानी है इस इनके बीच में. S और T के बीच में पहले कौन आता है? STUVW. पहले S आएगा, तो पहले दो रैंक ऑब्वियसली इनके होंगे 4 3 और बाकी दो रैंक इनके होंगे 1 2. कहां पर ऐसा दिख रहा है आपको? C में और D में. इसका मतलब A आंसर नहीं है, B आंसर नहीं है. आप देख पा रहे हो ना, पहले दो रैंक इनके होने चाहिए और बाकी दो रैंक इनके होने चाहिए. तो C और D में ही ऐसा है. उसमें भी C D में 1 2 कॉमन है. देखिए इसका मतलब मैं इसको चेक नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इनको चेक करूंगा. दिस इज कॉल्ड बिकमिंग बीइंग स्मार्ट. C और D हमने ये पता कर लिया कि ऑप्शन C और D में से ही आंसर है. C में और D में दोनों में इधर तो 1 2 ही है, तो जब ऑप्शन खुद बोल रहे हैं कि भैया 1 2 ही है पीछे, तो उसको क्यों चेक करोगे आप? वो तो आपको बना बनाया आंसर मिल गया ना. अब बात सिर्फ ये है कि 3 4 है या 4 3 है. चलो इसके बाद इधर I है और इसके बाद इधर P है. I और P में पहले I आता है, तो रैंक 1 इसका होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट. So 3 is first, so C is the answer, D is not the answer. Beautiful question. And काफी अच्छे से ऑप्शन को एलिमिनेट करने का अपॉर्चुनिटी भी था यहाँ पर, जो हमने यूज किया. So in many questions, like I keep telling you, if there is a chance to eliminate any of the options with the information that you have, please use that. है ना? Please use that. That was questions 26. Let's move to question 27. Arrange the following words according to the dictionary. So we've got intricate, interview, intransient, intransigent, interrogation and intravenous. Okay, काफी भारी भारी words हैं. So take 2 minutes because I think 2 minutes are now more than enough. Take 2 minutes. Try to answer smartly. Try to work around the options. Try to eliminate a couple of them. Correct? जैसे कि फर्स्ट देख रहे हो आप, फर्स्ट से ही आपको पता चल जाएगा आंसर क्या है. फर्स्ट से ही पता चल जाएगा आंसर क्या है. सो ट्राई टू यूज दिस काइंड ऑफ लॉजिक. आई एम गोइंग टू गिव यू 2 minutes. पॉज द वीडियो, सॉल्व इट ऑन योर ओन एंड रिज्यूम आफ्टर यू आर डन. ओके, सो आई होप बाय नाउ यू आर डन विद दिस वन. चलिए इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं. सो वी गॉट INT कॉमन एवरीवेयर, राइट? INT कॉमन है. देखिए So INT को मैं क्यों यूज करूं? So we got 1 2 3 4 5. चलो यहां पर है RI, यहां पर है ER, थर्ड में है RA, फोर्थ में है ER, यहां पर भी ER था, यहां पर भी ER था, तो अब मुझे एक और चाहिए होगा. ये था ERV और ये है ERR. ओके, फिफ्थ में है RAV, यहां पर भी RA था, सो इट वाज RAN, RI नहीं. ओके, सबसे पहले इधर रेस लगानी है. सबसे पहले RE वही है और कुछ नहीं है. E वर्सेस R में पहले कौन आता है? ऑब्वियसली E आता है. सो रैंक 1 या तो 2 का होगा या तो 4 का होगा. इधर भी 2 वाला ऑप्शन, इधर 4 वाला ऑप्शन.
रैंक 1 या तो 2 का होगा या तो 4 का होगा। चलो 2 और 4 में ही लगाओ, 2 वर्सेस 4 करो, इस पे ही फोकस करना है, बिकॉज जो फर्स्ट होगा उससे तुरंत आंसर पता चल जाएगा हमें। 2 वर्सेस 4 करना है, राइट। यहां पर है ERV, यहां पर है ERR, इसका मतलब R और R यहां से भी हम नहीं तय कर पाएंगे कौन पहले आया, सो वी हैव टू गो टू V एंड R। चलिए V वर्सेस R में पहले कौन आता है, OPQRSTUV, R पहले आता है, सो दिस कम्स फर्स्ट, दैट मीन्स फोर्थ इज फर्स्ट, and that means answer is option C, because किसी और ऑप्शन में फोर्थ फर्स्ट है ही नहीं, यहाँ पर सेकंड फर्स्ट है, यहाँ पर फिफ्थ फर्स्ट है, यहाँ पर थर्ड फर्स्ट है, सो ऑप्शन ही ऐसा है कि आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ फर्स्ट चेक करो, यू आर डन। एंड आई होप आप लोगों ने भी सेम चीज किया होगा, है ना। सो दैट वाज क्वेश्चन 27।